Let us continue the lesson. Page number 76 from the beginning. It was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. That was only fair, as if Evans would not spot it. But wasn't it all a bit of theatrical, dramatical, schoolboyish almost? How on earth was Evans going to try anything on today? न जाने वो क्या करने जा रहे हैं आज. If he was so anxious to make another break, why in heaven's name had not he tried it from recreational block? आज उसको जेल तोड़ने का कोई प्लान है. भगवान करें ऐसा यहाँ पर ना हो. Much easier, but he had not. And there he was now, sitting in a locked cell. All the prison officers on alert. 2 more locked doors between his cell and the yard. And a yard with a wall as high as a haystack. Yes, Evans was as safe as houses. लेकिन आज अगर कोशिश करे तो भी मुश्किल तो पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी इतना टाइट है. उसको जिस सेल में रखा है वो सेल का सिक्योरिटी भी बहुत खतरनाक है, तो इसलिए बचने का संभावना कम है. Anyway, it would not be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. It was not as if there was going to be anything to listen to, was it? Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. But still, that little nagging doubt. Might Evans try to take advantage of McClary? Get him to smuggle in a chisel or two or a rope ladder or... लेकिन होगा क्या है अगर इवांस इन्विजिलेटर के ऊपर कब्जा करे और आक्रमण करे? वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है. अगर उसके पास कोई ऐसा हथियार, चीसल, छेनी या कोई रोप लैडर तैयार करके रखा है तो बस वो इन्विजिलेटर के ऊपर आक्रमण कर सकता है. The governor sat up sharply. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. But what about McClary? इवांस को चेक करने के बाद मालूम पड़ेगा उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन इन्विजिलेटर के हाथ में कुछ है क्या, ये देखना जरूरी है. What if quite unwittingly the innocent McClary had brought in something himself? अगर मैक्लेरी कुछ अंदर लेके आया है तो ये जैक नाइफ परहैप्स. वैसे जैक नाइफ अगर लेके आया हो, जैक नाइफ उसी को कहते हैं जो फोल्डिंग करने वाला, उसका ब्लेड फोल्डिंग करने वाला जो रेसर होता है, शेविंग करने का यूज़ करता है वैसे, और सुपारी वगैरह काटने का भी इस्तेमाल करता है. तो ऐसा चक्कू अगर संभाल के रखा हो, उसके पास किसी काम के लिए रखा हो. एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड इज हॉस्टेज विथ सच ए वेपन? अगर उस हथियार से अगर वो इन्विजिलेटर को बंधक बनाए, हॉस्टेज मीन्स बंधक बनाना, ऐसा करे तो. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन. इट वॉज 9:12 a.m. द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McClary through the cell door. इस समय दोनों को इंस्ट्रक्शन दिया है. कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर, यू टू स्टीफेंस? आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हो क्या? जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज. बाहर बुला के दोनों को गवर्नर का जो डाउट है वो क्लियर कर लिए. And McClary patiently held out his arms at shoulder level
while Jackson lightly frisked his clothes. इसलिए जैक्सन इन्विजिलेटर का चेकिंग किया. समथिंग हार्ड हियर सर. सर कुछ है इधर. माई रीडिंग ग्लास रिप्लाइड मैगलेरी. मैगलेरी ने बोला ये तो मेरा रीडिंग ग्लास है. लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस. Jackson quickly reassured him, and bending down on the landing, thumb flicked the catches on the suitcase. He picked up each envelope in turn, carefully passed his palms along the surfaces, and seemed satisfied. तुरंत जैक्सन इन्विजिलेटर को सही से चेक किया. सूटकेस भी चेक किया. उसमें जो भी चीज़ें रखा था उसमें हाथ चला के देख लिया. तो ही फाउंड एवरीथिंग वाज satisfied. And he riffled curiously through a few pages of Holy Writ and Holy Bible, and vaguely shook the church times. All right so far. बाइबल भी खोल के देख लिया, उसको हिला के देख लिया, कोई चीज़ छिपा के रखा है, कुछ भी नहीं थे. But one of the objects in McClary's suitcase was puzzling him sorely. लेकिन उसके सूटकेस में एक ऐसा चीज़ मिला, उससे प्रिजन ऑफिसर थोड़ा परेशान हो गए. डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर. तो उसने पूछा, सर आप ये क्यों लेके आया, बता सकते हो. ही हेल्ड अप ए स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग. उसके टाची में एक रबर रिंग मिला. सच ए यंग चाइल्ड विथ ए वेस्ट ऑफ अबाउट 12 inches might have struggled into. You think of going for a swim, sir. ये क्यों लाया सर, क्या आप तैरने जाओगे आज. जैसे आप लोगों को पता होगा कि स्विमिंग करने सीखने वाला एक ट्यूब डाल के उसी में पकड़ के डूबने से बचने का सिस्टम अपनाते हैं, वही है. इस तरह का एक छोटा सा रिंग है, उसका भी हिसाब किताब नहीं है. इतना छोटा रिंग से कोई स्विमिंग का प्रोग्राम फिर भी पूछा आप स्विमिंग करने जाओगे. मैकलेरी's hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by his tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat sorely. ये सवाल सुनते वो थोड़ा छिड़ गया. फिर भी उसने जवाब दिया, If you must know, I suffer from hemorrhoids, and when I am sitting down for any length of the time. तो इन्विजिलेटर ने जवाब दिया, सर शायद आपको पता नहीं होगा, मुझे हीमोरॉइड का बीमारी है, पाइल्स की बीमारी है. इसीलिए मुझे बैठने में तकलीफ़ होता है. जब तकलीफ़ होता है ये डाल के मैं उसके ऊपर बैठता हूँ. अभी सोचेंगे हीमोरॉइड पाइल्स की बीमारी क्या है. PILES स्पेलिंग है, डिक्शनरी कंसल्ट कर लेना तो मीनिंग समझ में आएगा. पाइल्स की बीमारी सुना तो होगा लेकिन आइडिया नहीं होगा क्या है. तो टेक द सपोर्ट फ्रॉम योर डिक्शनरी, यू विल गेट ए कंप्लीट आइडिया अबाउट इट. ओके. बीमारी का नाम है हीमोरॉइड. हम लोकल भाषा में कहते हैं पाइल्स डिसीज. वेरी सॉरी सर, आई डिड नॉट मीन टू. माफ़ करना, मुझे पता नहीं था आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है. द एम्बारसमेंट वॉज स्टिल रिडन इन जैक्सन्स चीक व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस. फिर उसने चेक किया, उसमें एक पेपर नाइफ मिला. आई थिंक आई हैड बेटर कीप दिस दो इफ़ यू डिड नॉट माइंड दैट सर. फिर उसको एक पेपर नाइफ मिला तो जैक्सन ने पूछा, क्या मैं ये अपने पास ही रखूं.
And it was 9:18 a.m. before the governor heard their voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway. टाइम चेक करने के बाद पता पड़ गया कि एग्जामिनेशन थोड़ा लेट होने का संभावना दिखाई दे रहे. मैगलेरी, यू हैव गॉट ए वॉच? वॉच है तुम्हारे पास? यस सर. I will be telling you when to start and again when you have 5 minutes left. All right. मैं बता दूँ कब शुरू करनी है और कब ख़त्म करना है, वो भी मैं बता दूँ. And there is plenty more of this writing paper should you need it. और तुम्हें जितना भी कागज़ का ज़रूरत है मैं दे दूँगा. Now write the name on the paper. 0211 in the top left hand corner. In the top right hand corner write your index number. Here we say roll number 313, and in the box just below that write your sender number 271. all right. ये चीज़ें तुम आंसर कॉपी में लिखो. Now the time is 9:20. I am not going to, sir. I don't know about that. Mr. Jackson gave me strict instructions too. How am I supposed to concentrate on my exam with someone breathing down my neck? Cry, sorry sir, I didn't mean. सर आप लोग इस तरह से बातें करते रहे और आवाज़ करते रहे तो मैं परीक्षा कैसे लेगा, मेरा कंसंट्रेशन सही नहीं रहेगा. इसका मतलब आप लोग परीक्षा के बीच में बोलिए मत. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन. जैक्सन, गुड. गेट स्टीवंस आउट ऑफ दैट सेल, विल यू? आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स. जैक्सन को बाहर बुलाओ, इतना कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है. As you wish, sir. जैसे हम आपकी मर्जी सर. The governor heard the exchanges in the cell, heard the door clang once more, and heard McClary announce that the examination had begun at last. और इन्विजिलेटर ने अनाउंस किया अभी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए. It was 9:25 a.m. and there was a great calm. 9:25 हो गए. At 9:40 a.m., the examination board rang through, and the assistant secretary with the special responsibility for modern languages asked to speak to the governor. 9:40 पर आगे से आवाज़ फोन आया, कुछ बात करनी है गवर्नर से. And the examination had already started, no doubt. Examination तो शुरू हो चुका था. ये quarter of an hour ago. Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. क्वेश्चन पेपर में एक करेक्शन है, आगे से करेक्शन करने वाला वो स्लिप उसमें लगाया ही नहीं. वेरी ब्रीफ. कुड द गवर्नर प्लीज़? तो गवर्नर को इसके बारे में जानकारी देना बता सकते हो? यस ऑफ कोर्स, आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन एंड डीविंग. होल्ड द लाइन ए मिनट. मैं जैक्सन के थ्रू आप का टेलीफोन का कनेक्शन करके दे सकता हूँ. रुकिए थोड़ी देर. वॉज दिस अ सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड? यही था गवर्नर ने जो शक किया था पहले. वॉज द फोन कॉल ए फेक? या फोन कॉल फेक था? एंड सम सिग्नल, या कुछ सिग्नल था, सम सीक्रेट मैसेज, या कोई सीक्रेट मैसेज है. बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली. जब वो भी है तुरंत उसका चेक करना चाहिए. He dialed the number of the examination board but heard only the staccato bleeps of a line engaged. तुरंत उसने एग्जामिनेशन बोर्ड में फ़ोन मिलाया लेकिन वहाँ का फ़ोन एंगेज आ रहा था. But when the line was engaged, was it? Yes. Not very intelligent that. 2 minutes later, he heard some whispered communication in the cell and the McClary's broad scope voice. थोड़ी देर बाद एग्जामिनेशन रूम के अंदर धीमी से आवाज़ आने लगा.
वो स्कॉटिश भाषा में कुछ बोल रहे थे. विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग ए वाइल मिस्टर इवांस एंड लिसन केयरफुली. लिसन इवांस, लिखना ही बंद करो, ध्यान से सुनो कुछ बातें. कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन. जो भी जर्मन पेपर 0211 अटेम्प्ट कर रहे, उस क्वेश्चन पेपर में कुछ करेक्शन है. ऑन पेज नंबर 3 लाइन 15 द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन, नॉट गोल्डन. वो तो जर्मन भाषा में अपन को समझ में नहीं आता इसका मीनिंग क्या है, तो बस वहाँ पर एक शब्द है उसको इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से करेक्ट करना है, और उसमें जो लिखा वैसे नहीं है. एंड द होल फ्रेज विल देयर ऑफ रेड ज़ गोल्डन. आई विल रिपीट दैट. दोबारा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, तो ये करेक्शन करना. द गवर्नर लिसनड एंड स्माइल्ड. ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ. गवर्नर को हंसी आई क्योंकि उसको भी थोड़ा बहुत जर्मन आता था. एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव. उसको थोड़ा बहुत जर्मन ग्रामर याद आए. एंड सो डिड मैक्लेरी बाय द साउंड ऑफ थिंग, फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन was most impressive. But what about Evans? He probably did not know what an adjective was. लेकिन इवांस के चक्कर देख लो, उसको एडजेक्टिव क्या है कुछ भी पता ही नहीं. द फोन रैंग अगेन. द मजिस्ट्रेट कोर्ट. दे नीड ए पर्सन वन एंड ए कपल ऑफ पर्सन ऑफिसर्स. इतना में किसी मजिस्ट्रेट का फ़ोन आया. वो चाह रहे थे उसको एक पर्सन वैन चाहिए और 2 पर्सन ऑफिसर्स चाहिए. इट्स अ रिमांड केस. And within 2 minutes the governor was wondering whether that could be a hoax. गवर्नर को ऐसा लगा कि ये कोई फेक मैसेज तो नहीं. He told himself not to be so silly. His imagination was beginning to run riot. उसका गुस्सा चढ़ गया. Evans, वो आवाज़ देने लगा. For the first quarter of an hour, Stevens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that every 2 minutes. शुरू में स्टीवंस पीप होल से 1 मिनट छोड़ के वॉचिंग किया, उसके बाद 2 मिनट छोड़ के. At 10:45 a.m. everything was still all right as he looked through the peephole once again. 10:45 तक सब सही चल रहा था. It took 4 or 5 seconds, no more. What was a point? It was always more or less the same. Evans, his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door. Seeking it seemed someone sorely needed inspiration from somewhere. जब हमें कुछ लिखने नहीं आता है, कोई कुछ याद ही नहीं आता है, तो हम पेंसिल मुंह में रख के यूँ सोचते रहते हैं. इवांस भी ऐसे ही किया. एंड ऑपोजिट हिम मैक्लेरी सीटेड स्लाइटली awkward फ्रॉम द टेबल नाउ, एंड हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, एंड हिज हेयर, as Stephen had noticed earlier, amateurishly clipped pretty closely to the scalp. His eyes behind the pebble lenses peering short-sightedly at the church times, and his right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, and the fingers of the left hand, the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black beard. फिर उसने मैक्लेरी को देखा, इन्विजिलेटर को देखा. उसका एक स्मॉल वर्णन यहाँ दिया है, तो उसको भी पढ़ के देख लेना. At 10:50 a.m. the receiver crackled to life, and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. कुछ समय के बाद 10:50 का टाइम दोबारा फ़ोन बजने लगा. Evans, please sir, please.
Would you mind if I put a blanket around me? Round my shoulder? So it is a bit parky in here, isn't it? तो इवांस धीरे धीरे मैकलरी से पूछा, इन्विजिलेटर से पूछा, सर ठंड लग रही है, ब्लैंकेट ओढ़ दूँ क्या? देयर इज वन ऑन द बंक सर, वो मेरा पलंग में पड़ा है ना. बी क्विक अबाउट इट. तो इन्विजिलेटर ने बोला हाँ पहन लो. Let us continue, page number 80 from the beginning. At 10:51 a.m., Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped around Ivan's shoulders. And he frowned slightly and looked at the examinee more closely. But Evans, the pen still between his teeth, was staring just as vacantly as before. स्टीफन्स एक बार और अंदर चेक किया तो इवान से कि ब्लैंकेट ओढ़ रखा था तो थोड़ा चिंतित हो गए. वो ध्यान से इवान्स को देखा. वो आराम से अभी भी पेंसिल मुंह में रखे इसे चुपचाप बैठा हुआ था. Blankly beneath a blanket, should Stevens report the silent irregularity? Anything at all fishy? Jacks had not Jackson said. He looked through the peephole once again. And even as he did so, Ivan pulled the dirty blanket more closely to himself. फिर एक बार और अंदर की तरफ देखा तो ठंड में जैसे अपन रजाई को या कंबल को अपनी तरफ खींचता, इस तरह से बॉडी को कवर करने के लिए वो अपनी तरफ ब्लैंकेट खींच रहा था. एंड वाज द प्लानिंग ए सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैकलेरी विद द ब्लैंकेट. ये ब्लैंकेट से मैकलेरी को यानी कि इन्विजिलेटर को दम घोड़ने का तरीका से परेशान करके मारने का कोशिश तो नहीं. डोंट बी डफ्ट. There was never any sun on this side of the prison, no heating either during the summer months, and it would get quite chilly in some of the cells. धूप आने का संभावना बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए गर्मी का मौसम में भी कमरे के अंदर ठंड होना नॉर्मल बात है. Stevens decided to revert to his earlier every minute observation. तो स्टीफन्स उसको बड़ा ध्यान से बार बार चेक करने लग गए. At 11:20 a.m., the receiver once more crackled across the silence of the governor's office, and McLeary informed Evans that only 5 minutes remained. एक बार और देखा 11:20 पे तो गवर्नर मैकलेरी ये इन्फॉर्म कर रहा था कि 5 मिनट रह गए. The examination was almost over now, but something still gnawed away quietly in the governor's mind. थोड़ी देर में परीक्षा ख़त्म हो जाएगा. फिर भी गवर्नर का दिमाग में ये बात थी कि कुछ हो तो नहीं. He reached for the phone once more, इसलिए उसने एक बार और डायल किया. At 11:22 a.m., Jackson shouted along the corridor to Stephens. 11:22 पर 11:22 को जैक्सन स्टीफन पर चिल्लाया. द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विथ हिम. हरी मैन. वो बता दिया कि गवर्नर तुमसे बात करना चाहता है. स्टीफन्स पिकड अप द फोन अप्रिहेंसिवली एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स. स्टीफन्स डर के साथ फ़ोन उठा के उसकी बात सुना. स्टीफन्स हिमसेल्फ वाज टू अकम्पनी मैकलेरी टू द मेन प्रिजन गेट्स. अंडरस्टूड. मैकलेरी को गेट तक स्टीफन ही पहुंचाएंगे. समझ में आ गया.
Stephens personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McClary had left the cell. Understood? McClary कमरे से बाहर आने के बाद ये निश्चित करना होगा कि अच्छी तरह सेल लॉक किया है या नहीं. समझे? Understood? At 11:25 a.m. the governor had the final exchange. और 25 को फाइनल एक्सचेंज हो गया क्योंकि 25 को पेपर ख़त्म हो गया. पेपर लेने का टाइम है तो उसी का भी आवाज़ सुनाई दिए. स्टॉप राइटिंग प्लीज. पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड. स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स. थैंक यू वेरी मच सर. ऑल राइट वाज इट? पेपर अच्छा था क्या? नॉट टू बैड. हाँ, इतना भी अच्छा नहीं था. Good, Mr. Stephens. The governor heard the door clang for the last time. The examination was over. Examination के बाद invigilator बाहर निकलने की आवाज़ सुनाई दिया. And how did he get on, do you think? asked Stephens as he walked outside McClary to the main gate. गवर्नर के आदेश के आधार पर मैकलेरी को स्टीफन खुद मेन गेट की ओर लेके गया तो पूछा कैसा था. I cannot think he was distinguished himself. I am afraid. His coat accent seemed broader than ever, and his long black overcoat reaching almost his knees. Fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. उसको पूरी तरह एक बार हाव भाव देखने से पता पड़ गया जैसे आया उससे भी थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है. ये तो कपड़े से पता पड़ेगा. स्टीफन्स वेल प्लीज्ड दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन. स्टीफन थोड़ा इतराया क्योंकि गवर्नर ने खुद स्टीफन्स को बताया कि तू ही लेके जाना गेट तक, जैक्सन नहीं. टू सी मैकलरी ऑफ द प्रेमिसेस and in all the morning had gone pretty well. दिन पूरा अच्छा निकला. But something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee. ड्यूटी की वजह से वो टाइम पर चाय नहीं पिया या कॉफ़ी नहीं पिया. इन्विजिलेटर को मेन गेट तक छोड़ के वो सोचा मैं एक बार कॉफ़ी पीने का तो व्यवस्था कर लेते. He wanted to take just one last look at Evans. तो उसने सोचा मैं एक बार इवांस को देख लेते परीक्षा के बाद उसकी कंडीशन क्या है. इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी अबाउट ए वुमन हु कुड नेवर रियली कन्विंस herself दैट शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर व्हेन शी हैड गॉन टू बेड. वो कभी कभी ऐसा डाउट निकलाते हमारे अंदर हम दरवाज़ा बंद किया है फिर भी हमारे मन में रहते वास्तव में बंद किया ही नहीं. इस तरह का एक शक उसके अंदर हुआ. एंड ऑफन she had got up 12, 15, sometimes 20 times to check the bolt. और इसलिए वो बार बार उसके कुंडी लगाया नहीं लगाया देखने के लिए परेशान होता है. इस तरह की एक परेशानी प्रिजन ऑफिसर के दिमाग में आ गई. He re-entered Deeving, made his way along to Evans' cell and opened the peephole once more. इसलिए वो सीधे डीविंग में जाके इवांस को चेक करने के लिए पीप होल से देखा. वो क्राइस्ट नो देयर स्प्रॉल्ड बैक इन इवांस चेयर वाज ए मैन. फॉर ए सेमी-सेकंड स्टीफन्स थॉट इट मस्ट बी इवांस. उसने वहाँ देखा इवांस के कुर्सी पे एक आदमी पड़ा हुआ है. ये ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स. जो ब्लैंकेट पहन रखा था वो उसका कंधे से फिसल गए. द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्लिप्ड irregularly tufted hair awash with fierce red blood which had dripped already through the small black beard. उसका सिर से खून बह रहे दाढ़ी तक आ गए. and is now spreading horribly over the white clerical collar. अब वो दाढ़ी से उसके कपड़े में गिरने लगे. and down into the blanket clerical front.
और उसके जो कपड़े का फ्रंट साइड में वो खून गिरने लगे। स्टीफन शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन। स्टीफन तुरंत जैक्सन को आवाज दिया। एंड द वर्ड्स अपीयर्ड टू पेनेट्रेट द कर्टन्स ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैकलेरी सीएस for the minister's hand felt feebly for a handkerchief from his pocket and held it to his bleeding head. मैकलेरी का कान तक पहुंचने वाले ब्लड को एक हैंडकरचीफ निकाल के पोंछने लगा और खून बहने का काम रुकने के लिए वो दबा के रख दी। द ब्लड seeping slowly through the white linen. He gave a long, low moan and tried to speak, but this voice trailed away. And by the time Jackson had arrived and dispatched Stevens to ring the police and the ambulance, the handkerchief was sticky, squelchy wad of cloth. जैक्सन अंदर आके स्टीवंस को एम्बुलेंस के लिए और पुलिस को बुलाने के लिए आदेश दिया। इतना में उसके कपड़े पूरा ब्लड से भर गए थे। मैकलेरी स्लोली raised himself, his face twisted tight with pain. Don't worry about the ambulance, man. I am all right. I am all right. Get the police. एम्बुलेंस तो रहने दो, पुलिस को बुलाओ। I know where he. मैं जानता हूँ वो कहाँ गए। He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop of the wooden floor. फिर एक बार वो देखा कि उसके शरीर से खून जमीन पर गिरने लगा, मतलब फ्लोर में गिरने लगा। And his hand felt along the table, found the German question paper. उसका हाथ में देखा, जो करेक्शन स्लिप और क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में था। And he grasped it tightly in his blood-stained hand. Get the governor. I know where Vance. आप गवर्नर को बुलाओ, मुझे मालूम है Vance कहाँ भागे। Almost immediately sirens were sounding. Prison officers barked orders. तुरंत उधर हेरा फेरी हो गई, शोर शराबा, ऑर्डर दिया जा रहा है, ले आ जा रहे। Puzzled prisoners pushed their way along the corridors. Doors were banged and bolted, and phones were ringing everywhere. भागा दौड़ी, इधर उधर फोन जा रहे। और and within a minute McLeary with Jackson and Stevens supporting him on either side, his face now streaked and caked with drying blood. McLeary को बड़े सावधानी से दोनों prison officers पकड़ के बाहर ले आए and was greeted in the prison yard by the governor. इतना में गवर्नर भी पहुंच गए, उसके सामने लाया। परप्लेक्स्ड एंड ग्रिम, पूरा कंफ्यूज और सीरियस सिचुएशन में पहुंच गया। वी मस्ट गेट ऑन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है। आई जस्ट डोंट। यू हैव कॉल्ड द पुलिस? यस दे आर ऑन देयर वे। पुलिस को बुलाया? हाँ सर, आ ही रहे। I am all right. Look here. Awkwardly he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। उसने वो क्वेश्चन पेपर गवर्नर की तरफ दिया। It is there. Do you see what I mean? समझ रहे हो कुछ मेरी बात? The governor looked down and realized what McLeary was trying to tell him. McLeary, इन्विजिलेटर, जो बताना चाह रहे थे वो गवर्नर समझ गया। ये फोटोकॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपरइम्पोज्ड ओवर द लास्ट ओरिजिनल ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो लगा हुआ स्लिप था ना, उसी की ओर ध्यान मोड़ दिया। यू सी व्हाट दे हैव डन, गवर्नर, यू सी। His voice trailed off again as the governor, dredging the layers of long neglected learning, built himself to translate the German text before him. तो पर्चा उड़ा के पढ़ के देखो सर, सब कुछ उसमें है।
सी सोलन डेन सोगन, बस वो जर्मन में लिखा है. यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी. समथिंग. द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, बट समथिंग समथिंग समथिंग. एग्जामिनेशन के 3 minute पहले कुछ ऐसी बात आ गया. कुछ बात देख. डोंट हिट हिम टू हार्ड. रिमेंबर ही इज ए मिनिस्टर. एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट्स एक्सेंट वेल. और थोड़ा पर्चा सही से पढ़ के देखो. ये फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल्ड ट्रीज क्रेसेंडो. द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वेयर पुश्ड बैक एंड ए वाइट पुलिस कार स्क्वील्ड टू ए जर्की हाल्ट बिसाइड दम. बहुत तेजी से आए हुआ एक पुलिस की गाड़ी वहाँ आके रुक गई. डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor. पहले बताया था कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट उतर के गवर्नर को सल्यूट मारा. What the hell is happening, sir? And turning to McCleary, Christ, who was it him? अरे सर क्या हो गया? मैकलेरी को किसने मारा? But McCleary cut across whatever explanation the governor might have given. Elsfield Way, officer. I know where he wants. सब मैकलेरी चिल्ला के बोलने लगा, सर गवर्नर से पूछताछ करने से अच्छा तो ये एल्सफील्ड वे में जाओ, मुझे मालूम है वो कहाँ गया. He was breathing heavily and leaned for support against the side of the car. There the imprint of his hand was left in tarnished crimson. In bewilderment, Carter looked to the governor for guidance. तो डिटेक्टिव ऑफिसर गवर्नर का आदेश का इंतजार किया. टेक हिम विथ यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट. ही इज द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग. ये खुद ही कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा कह रहे तो इसको साथ लेके जाओ, क्योंकि ये जानते हैं वो कहाँ गया. ये कह रहे हो ना वो जानते हैं वो कहाँ के और गए. Carter opened the back door and helped McCleary inside, and within a few seconds the car leaped away in a spurt of gravel. और उसको गाड़ी में बिठा के कार्टर लेके चले गए. Continuation, page number 83, last paragraph. Elsfield Way, McCleary had said, and there it was staring up at the governor from the last few lines of the German text. From Elsfield Way drive to the Headington roundabout. सीधे एल्सफील्ड में जाओ, वहाँ से हेडिंगटन में जाके हम चक्कर काटेंगे, सर्कल. वेर येस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशंस बोर्ड वाज इन एल्सफील्ड वे and someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. एल्सफील्ड वे में एग्जामिनेशन बोर्ड का सेंटर है, वहाँ से किसी का मदद मिला था इसको भगाने में. द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ द करेक्शन स्लिप उसका प्रूफ है. द गवर्नर turned to Jackson and Stephens. I don't need to tell you what has happened, do I? गवर्नर को गुस्सा आ गया. दोनों पर्सन ऑफिसर पे चिल्लाया, जानते हो ना क्या हो गया दोनों. His voice sounded almost calm in its scathing attempt, लेकिन उसकी आवाज़ गुस्से भरी आवाज़ नहीं थी. शांत आवाज़ में बोला, यानी पता है ना कैसे क्या हो गया, बोलने की ज़रूरत नहीं है ना. And which one of you two morons was took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye bye. दोनों मोरन मीन्स स्टूपिड. दोनों में से कौन सा बेवकूफ़ ने उसको गेट तक छोड़ के बाय बाय कह के आया था.
इट वॉज मी सर, स्टामर्ड स्टीफन। स्टीफन थोड़ा गर्व करके बोला, हम मैं ही था सर। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, आपने जैसा बोला वैसे मैं ही खुद ले गया। आई कुड हैव स्वॉर्न, मैं कसम खा के कहता हूँ सर मैं ही ले गया था आपके कहने पर। व्हाट? जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से। क्या बोला, क्या बोला? मैंने बोला तो मैं लेके जाने के लिए। व्हाट द हेल? व्हेन यू रैंक सर एंड यू टोल्ड मी, अरे सर आपने फ़ोन करके बोला था ना, मैं खुद ही बात किया था। व्हेन वाज दैट? द गवर्नर्स वॉइस वाज से विप्लश नो। अब गूंजती हुई आवाज़ में उसने पूछा, मैंने कब फ़ोन किया था? यू नो सर अबाउट 11:20 जस्ट बिफोर, आप ही ने किया था। यू ब्लिथरिंग इडियट मैन, इट वॉज नॉट मी हु रैंग यू। बेवकूफ़ आदमी, मैंने नहीं किया किसी को फ़ोन। डोंट यू रियलाइज? बट व्हाट वाज द यूज़? ही हैड यूज्ड द टेलीफोन एट दैट टाइम बट ओनली टू ट्राई unsuccessfully once more to get through to the examination board. अब क्या बोले, जो होना तो हो गया। He took his head in growing despair and turned on the senior prison officer. As for you, Jackson, how long have you been pretending you have got a brain? ए जैक्सन, दिमाग है तुम्हारे अंदर? Well, I will tell you something, Jackson. Your skull is empty. बात बताऊं, तुम्हारा खोपड़ा खराब है, खाली है, absolutely empty. It was Jackson who had spent 2 hours in Ivan's cell the previous evening. जैक्सन इवान के साथ रहा था 2 घंटे पिछले दिन। And it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there. उन्होंने खुद ने रिपोर्ट किया था कि उसके कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है। And yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia, but also some sort of weapons with which he had given McCleary such a terrible blow across the head. इतना कुछ होने के बाद भी वो नकली दाढ़ी, स्पेक्टिकल, पादरी का कपड़े, ये सब कुछ वो व्यवस्था करके रखा और इस इन्विजिलेटर के खोपड़े में मारने के लिए हथियार भी तैयार करके रखा। तो फिर क्या चेकिंग किया तूने अंदर? ये प्रिसन वेंट बैक्ड अलॉन्ग साइड बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव। ये गाड़ी आई, गवर्नर परवाह नहीं किया। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन। वो स्लिप में देख रहा था। टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू न्यू ग्रेवन। न्यू ग्रेवन, वेयर ऑन अर्थ? न्यू समथिंग, न्यू ग्रेव, उसमें ये लिखा हुआ था हेडिंगटन राउंड अबाउट से न्यू ग्रेवन की ओर। ये न्यू ग्रेवन क्या होता? न्यू ग्रेव, नेवर हेard, आज तक सुना नहीं है ऐसा कोई जगह। देर वाज ए वार ग्रेव समवेयर नियर रीडिंग, पढ़ने में आए कभी वार ग्रेव है, लेकिन न्यू ग्रेव कभी देखा ही नहीं। नो, इट वॉज प्रॉब्ली ए कोड वर्ड। अब मुझे समझ में आ गया, ये कोई कोड वर्ड है। एंड देन इट हिट हिम, अब दिमाग में आ गया, न्यू बरी। गॉड यस, न्यू बरी वॉज ए प्रिटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस। अब समझ में आया ये न्यू ग्रेवन नहीं है, न्यू बरी है। अब थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर। वो ड्राइवर को आदेश दिया, सेंड Aldi's पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट, टेक जैक्सन एंड स्टीवंस हियर, एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, चीफ इंस्पेक्टर बेल। गॉट दैट? तो जाके उस पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बता दो बेल को, समझे? He leaped the stairs to his office 3 at a time, got Bell on the phone immediately and put the facts before him. तुरंत जाके बेल को फ़ोन किया। You will get him, sir, said Bell. We will get him with a bit of luck. चिंता मत करो सर, पकड़ेंगे उसको। The governor sat back and lit a cigarette. Ye gods, what a beautifully laid plan it had all been.
What a clever fellow Evans was. क्या प्लान बनाया. Careless leaving that question paper behind. लेकिन उसने एक बेवकूफ़ी किया, क्वेश्चन पेपर छोड़ के गया. But then they all made their mistakes somewhere along the line. मैं तो क्या, इवांस क्या, सब ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो किया है. Well, almost all of them. And that is why very shortly Mr. Clever Vance would be back inside doing his once more. इसी वजह से जल्दी वो पकड़ में भी आ जाएगा. The phone on his desk erupted in a strident burst, and Superintendent Carter informed him that McCleary had spotted Evans driving up along Innisfield Way. इतना में डिटेक्टिव ऑफिसर का फ़ोन आ गया. सर, इवांस को मैक्लेरी ने पहचान लिया, कहाँ की ओर जा रहे. दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट एंड हैड गिवन चेस इमीडिएटली. उसने गाड़ी का नंबर भी नोट किया, हम उसका पीछा कर रहे. बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट. लेकिन हेडिंगटन राउंड अबाउट तक हमने उसका पीछा किया, लेकिन वहाँ से गायब हो गया. ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी. शायद उस सिटी में चक्कर काट रहे होंगे. नो, सेड द गवर्नर क्वाइटली. नो, ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबरी. नहीं 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 नहीं, वो सिटी में चक्कर नहीं काट रहे, वो न्यूबरी की ओर चला गया. ही एक्सप्लेन्ड हिज रीज़न फॉर बिलीविंग सो. उसने अपनी बात भी बताया कि ऐसा कहने का क्या मतलब. एंड लेफ्ट इट एट दैट. एंड इट वॉज ए पुलिस जॉब नाउ, नॉट हिज. अब ये पुलिस का काम है, आपका नहीं है. ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर ए गिगल. बच्चे जैसा हंसना. दैट वॉज ऑल. बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लेरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट. तो मैंने उससे पूछा, तो उसको हॉस्पिटल ले गई क्या. यस, ही इज़ इन द रेड क्लिफ नाउ. मैंने उसको रेड क्लिफ हॉस्पिटल में ले गया, वो अभी वहाँ पर है. रियली ग्रोगी, बिल्कुल कमज़ोर. When he go to the examination officers and they rang for the ambulance from there. जब एग्जामिनेशन ऑफिस में जाके फ़ोन किया तो एम्बुलेंस उसको लेने वहाँ आए. द गवर्नर रैंग द रेड क्लिफ ए फ्यू मिनट्स लेटर एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट. वो तुरंत रेड क्लिफ हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछा, मैक्लेरी नाम का कोई आया है क्या. वो एक पार्सन है. पार्सन मीन्स पादरी. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीवन. नहीं सर, ऐसा कोई नहीं आया. यस देयर इज़. देख है उधर. यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंसेस पिक्ड हिम अप फ्रॉम एंसफील्ड वे. आपके हॉस्पिटल के कोई एम्बुलेंस में बैठ के वो एनफील्ड से हॉस्पिटल की ओर आए. ओ दैट. यस, वी सेंड एन एम्बुलेंस ऑल राइट, बट व्हेन वी गॉट देयर द फेलो हैड गॉन. अच्छा, एम्बुलेंस की बात. हाँ, मैं एम्बुलेंस के लिए तो ठीक है, एम्बुलेंस लेके हम पहुंच गया था, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुके थे. नो वन सीम्ड टू नो वेयर ही वाज. किसी को पता नहीं वो कहाँ गए. जस्ट वैनिश्ड, नॉट ए साइन. वो गायब हो गया, पता नहीं किसी को कहाँ गए. एंड बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग एंड द ट्रूथ सीम्ड टू हिट हिम विथ एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक. अब गवर्नर को कुछ बोलना ही नहीं, उसको सब कुछ समझ में आ गया. ये क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड द रेवरेंड एस मैक्लेरी सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट. तुरंत उसने रेवरेंड का, मैक्लेरी का हिसाब किताब किया. पता पड़ गया कि मैक्लेरी को बांध के किसी जगह में रख रखा है. He had been there, he said, since 8:15 a.m. when two men had called in. उससे पूछा गया तो बोला तो बस वो 8:15 से लेकर 2 आदमी आके उसको वहाँ बांध के गए. Enquiries in Newbury throughout the afternoon proceeded, produced nothing at all. And by tea time, everything in the prison knew what had happened. टी टाइम के साथ सबको पता पड़ गया कि प्रिजन में क्या क्या हुआ. It had not been Evans impersonating McCleary who had walked out. It had been Evans impersonating McCleary who had stayed in.
मैकलेरी जानकर हम जिसको पकड़ के ले गया वो मैकलेरी नहीं है, वो खुद ही इवान था। The fish and the chips were delicious, and after a gentle stroll round the center of Chipping Norton होटल का नाम है, वहाँ जाके वो कमरा लेके वहाँ रहा, वहाँ से खाना खा के आराम से वो घूमने निकला। इवान डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल एंड हैव एन अर्ली नाइट। उसने सोचा जल्दी से आके सो जाए। ये स्मार्ट न्यू एट कंसील द wreckage of his closely chopped hair and he kept it on as he walked up the reception desk of the Golden Lion में घुसते समय उसने अपने बाल वगैरह बिखर के चला गया ताकि कोई पहचाने नहीं। It would take a good while for his hair to regain its former glories, but what the hell did that matter? He was out again, wasn't he? A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors, for it had meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night. But he had had his good luck too. Just think, if Jackson had made him take his bobbled hat off, that really had been a close call. Still, old Jackson was not such a bad fellow. उसका क्या पढ़ाने के लिए बोला तो उसने रिक्वेस्ट किया था, ये मेरे लक का चीज़ है, अगर आप कहें तो बस ऐसे रहने दो। अगर उसी टाइम में हाँ पढ़ा के देख लिया तो सब कुछ पता पड़ जाता। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग फनी रियली हैड बीन द बियर्ड। मज़े की बात है ये दाढ़ी का। ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जेटिक टू स्टिकी प्लास्टर एंड इवन नाउ हिज चिन वाज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड। और उसको स्किन एलर्जी है। दाढ़ी चिपकाया तो उससे उसका चेहरे में स्क्रैचिंग और चिन पूरा फुंसी से भर गए।